Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 17 September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move on to understanding the important articles of the day, आज का जो डेट है 17 September, इस दिन को हम क्या मनाते हैं? So यहाँ पे two events हैं. Firstly, it's the birth and a birthday of our Prime Minister Narendra Modi. Special है because 75 years birthday है, so that's why it is important. So happy birthday to Modi ji. Apart from that, अगर हम international day में देखें, so we'll also see this editorial जहाँ पे the day talks about World Patient Safety Day जो 17 सितंबर को मनाया जाता है. Quickly let's see firstly what is the theme and कुछ important points जो आर्टिकल में भी कवर किया है. Let us all consolidate and give it to you. So 17 September is celebrated as World Patient Safety Day. आपने सुना है कि recently बहुत सारे ऐसे cases हैं कि there is a lot of negligence in the hospitals. जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि दो newborns की death हो गई थी in जबलपुर in Indore, mainly because of a rat bite. Yeah, have you heard of that news? And again, one of the two cities में जबलपुर या इंदौर की, I'm not very sure, but यहाँ पे वापस से दो लोगों की डेथ हुई है. So मध्य प्रदेश में this has been a problem and here it entails to question. आज यहाँ पे question आता है कि what are we doing to ensure the patient safety? So यहाँ पे let's quickly see with regard to this. Orange जो color है, this is the mark of World Patient Safety Day. The theme of this year is safe care for every newborn and every child. And इसका slogan है patient safety from the start. Right? So India में patient safety के लिए हम क्या क्या करते हैं? So firstly we have a National Patient Safety Implementation Framework जो 2018 से लेके 25 तक है. So यहाँ पे जो एडिटोरियल में बताया गया है कि गवर्नमेंट शुड नाउ रिन्यू दिस पॉलिसी, रिन्यू दिस फ्रेमवर्क बिकॉज हम डेडलाइन तक पहुंच चुके हैं 2025, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट There's a Society of Pharmacovigilance India जो मॉनिटर करता है कैसे ड्रग्स अफेक्ट करते हैं पेशेंट्स को, what are the side effects and so on. Apart from that, there's also an accreditation board, right? National Accreditation Board for hospitals and healthcare providers. But अभी it's a starting data that's given in the editorial कि सिर्फ 5% ऐसे hospitals accredited है कि क्या वो safe हैं, क्या वो उन्होंने safety norms follow किया है. All that is only up till now 5% have got that status. तो ये था with regard to World Patient Safety Day. Let's now proceed to the next article. अगला article again given in the news headlines, even in the Hindu. It's because with the recent flash floods, okay, and cloudburst that has once again struck Uttarakhand. तो कुछ महीने, in fact last month only we saw Uttarakhand had Uttarkashi, the place had floods, right? Flash floods हुए थे, landslides हुए थे. तो यहाँ पे same information we see again this has occurred and कल की बात है they have found about 13 deaths, okay, and so many people have injured because of this grave incident. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों it is so prone, that's these hilly regions, why are they so prone to these natural calamities, these disasters like flash floods, cloudbursts, landslides, क्यों होते हैं यहाँ पे, ये जल्दी से हम देखेंगे. So this has a lot got to do with the topography, with the you can say the physical features of the region. ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे हम देखते हैं some quick points. So firstly, why heavy rain in hilly regions is dangerous? ये क्यों dangerous है ये देखते हैं. So firstly, article कहता है कि monsoons की वजह से, now we know the monsoon period we understand that gets done by September, but because of these active monsoon, these seasonal winds जो यहाँ पे लगते हैं, the low pressure systems from Bay of Bengal जो northern part की तरफ जाते हैं, they cause a lot of rainfall. It is said that अगस्त महीने में 34% ज्यादा हुआ है और अगर जो अर्ली सितंबर की बात करें 67% अबव नॉर्मल रेनफॉल्स मिला है.
द सेकेंड फैक्टर वी टॉक अबाउट इज उसकी ज्योग्राफी, जो हिमालयन रीजन की ज्योग्राफी या की बात करें, दैट इज ऑल्सो मोर अफेक्टेड। जैसे कि अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल द कोंकण कोस्ट, द मलाबार कोस्ट, राइट, या इवन मेघालय फॉर दैट मैटर, बिकॉज मेघालय में भी हम देखते हैं चेरापूंजी में बहुत ज्यादा रेनफॉल आता है, राइट, इट्स अ वेटेस्ट प्लेस। सो यहाँ पे ये मैनेजेबल है बिकॉज दिस इज अ प्लेन रीजन। वेयर एज अगर हम हिमालय की बात करें, विच हैज regions like or states like Uttarakhand, Himachal Pradesh and the Union Territory of Jammu Kashmir, यहाँ पे वो same rainfall amount will be disastrous because of the hilly region, because of the topography। तो यहाँ पे what is the reason also, यहाँ पे भी आर्टिकल में बताया है कि जो राइजिंग एयर, ओके, जो वार्म एयर ऊपर जाता है और माउंटेन रीजन्स के ऊपर जब वो यू नो राइज करता है, सो दैट लीड्स टू लोकलाइज्ड इंटेंस प्रेसिपिटेशन। एंड यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट भी पता होना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या है? क्लाउड बर्स्ट इज व्हेन यू गेट रेनफॉल ऑफ 100 मिलीमीटर से ज्यादा in 1 hour in 10 by 10 square kilometer area। Okay, so यहाँ पे once again what is a cloud burst? Cloud burst is mainly when we talk about आपको 100 मिलीमीटर रेनफॉल से ज्यादा 1 घंटे में in about 100 स्क्वायर और 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यहाँ पे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो पिछले महीने जो क्लाउड बर्स्ट, वो जो इवेंट हुआ था, हैवी रेनफॉल हुआ था, दैट वाज नॉट क्लासिफाइड एज क्लाउड बर्स्ट बिकॉज उन्होंने क्राइटेरिया मैच नहीं किया। बट यहाँ पे हम देखते हैं द क्राइटेरिया इज मैच एंड वी कैन से यस इट वाज क्लाउड बर्स्ट इज अ रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ रीजन्स में द रेनफॉल रीच्ड अप टू 630 मिलीमीटर इन 24 आवर्स, व्हिच इज अगेन वेरी सैड। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये हिली रीजन्स क्यों वल्नरेबल है, बिकॉज एज वी अंडरस्टैंड प्लेन रीजन्स में, जैसे कोस्टल रीजन्स में, द एक्सेस वाटर कैन गो टू द सीज, दे कैन जॉइन द सीज, द रिवर्स आर देयर, सो दैट इज मैनेजेबल। बट अगर हम हिल्स की बात करें, इनका जो रीजन है, इट्स प्रोन टू मोर लैंडस्लाइड्स, इट्स प्रोन टू मडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, और यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो रॉक्स है, ग्रेवल्स है, सॉइल है, ये कैरी करते हैं डाउनहिल। सो जो भी घर है इन द नियर बाय, जो पीपल, यहाँ पे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड। तो ये इसीलिए डिजास्टर्स होते हैं, स्पेशली अगर कोई घर इज लोकेटेड इन दी स्लोपी रीजन्स, राइट, डेब्री जो प्रेजेंस है, एंड ये रिवर जब पानी भर जाता है, फ्लड्स होते हैं, एंड दैट कैन अफेक्ट टू द नेबरिंग रीजन्स एज वेल। इसका यहाँ पे एक और रोल भी दिया है क्लाइमेट चेंज का। सो अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, अपार्ट फ्रॉम द टोपोग्राफी, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो गिवन अ रीजन फॉर द इंटेंस डिजास्टर्स इन दीज हिमालय रीजन। तो हमको पता है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, दीज आर द विंड सिस्टम्स दैट कम फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, ठीक है। सो व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडियन साइड, दे शिफ्ट साउथवर्ड, ये इंटरैक्ट करते हैं हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से, एंड दैट लीड्स मोर रेनफॉल। सो वन मोर रीजन इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटरैक्टिंग विद द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। द सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हम देखते हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। वी नो द ग्लेशियर्स ऑफ उत्तरकाशी विच इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री। सो मेल्टिंग की वजह से हम देखते हैं कि yes, this can cause more floods, right? Apart from that, हम देखते हैं Arctic ice melt. This is also increasing, altering the monsoon circulation, rainfall even in Himalayas. Further, meteorologists भी कहते हैं कि जो ये cloud bursts बार-बार हो रहे हैं, this has to have a relation, of course, with climate change. So ये सब हमने देखा with regard to the recent disaster in Uttarakhand. Let's proceed to the next article. अगला article है UPS के बारे में. So we'll be understanding about the Unified Pension Scheme. We'll understand इससे पहले what are the older schemes, like we have the NPS or the OPS. We'll also see कि आज ही आर्टिकल न्यूज में क्यों है, तो ये सब हम आज के न्यूज में देखेंगे. Firstly, let's see the older schemes. So पुराने गवर्नमेंट स्कीम, now we know what's pension, right? तो once you are done with your work, retirement age के बाद जो आपको गवर्नमेंट पैसे देती है,
या आपने प्रॉब्ली इकट्ठा करके रखा है सो दैट यू कैन लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज योर पेंशन। तो पहले जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम होता था एंड दैट वाज मेनली फॉर एम्प्लॉइज जो जनवरी 1 2004 के पहले हायर हो चुके हैं। Now, यहाँ पे याद रखना दे यूज्ड टू गेट एन अश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, जो उनकी सैलरी से 50% उनको मिलता था एज एन अश्योर्ड पेंशन। यहाँ पे एम्प्लॉई कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करता था, द एम्प्लॉई वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, सो इट वाज मेनली द गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयर दैट यूज्ड टू गिव। But then we had NPS that came. तो NPS was mainly mandatory, सबके लिए था ये, जो भी हायर हो चुके हैं from January 1st 2004 onwards। तो ये था January 1st 2004 के पहले, ये था January 1st 2004 के बाद। यहाँ पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता था, कितना परसेंट? वी हैड 10% which the employee used to contribute, and बाकी का हम देखते हैं 14% was contributed by the employer, जो नौकरी देता है। यहाँ पे कोई assured payment नहीं है, this used to depend on the market, so it was market linked returns। यहाँ पे कोई guarantee payout नहीं है, like we saw यहाँ पे कि 50% assured होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। Then came the UPS, okay, तो देखते हैं quickly UPS क्या है? That's the Unified Pension Scheme। Now Unified Pension Scheme announce किया था August 2024 में, यानी कि last year this was announced, और ये कहाँ गया था कि इफेक्ट में आएगा April 1st 2025, यानी कि ये इफेक्ट में आ चुका है। बट याद रखना ये ऑप्शनल है, यानी कि जो लोग NPS हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे आए वो यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा? लाइक वी सॉ 10% होगा फॉर द एम्प्लॉय लाइक फॉर एनपीएस, पर यहाँ पे एम्प्लॉयर भी 10% देगा। ओके, दिस इज व्हाट द कंट्रीब्यूशंस दैट वी टॉक अबाउट। यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऐड कर रहा है कितना? 8.5% ऑफ बेसिक पे। सो 8.5% भी यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे एक अश्योर्ड पे होगा, लाइक वी सॉ इन ओपीएस सिस्टम। यहाँ पे एक अश्योर्ड पेमेंट होता है कितना? 50% ऑफ द बेसिक एवरेज पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स का जो बेसिक एवरेज है उसका 50%, जो सैलरी आपको इन द लास्ट 1 year you must have received, right? उसका वो 50% आपको देते हैं। फर्दर फैमिली पेंशन, यानी कि आपको फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, ओके, तो स्पाउस, मान लो कि कोई जो ओपीएस यूपीएस सिस्टम में है वो he passed away or he died. Okay, now in that case you can get about 60% of the pension after the pensioner's death. So यहाँ पे support for the family as well. Apart from that 10,000 monthly if you have served for 10 years सर्विस किया है आपने, then 10,000 पर मंथ आपको ये मिनिमम मिल सकता है, राइट? एंड यहाँ पे लमसम भी दिया है कितना आपको, एक once and for all if you want to take the whole amount, that is also mentioned in this case. So ये है UPS system, but remember it was not mandatory. फिर हम देखते हैं flexibility of UPS। यहाँ पे बताया है कि आप switch भी कर सकते हो from UPS to NPS and NPS to UPS। Now यहाँ पे याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार आपने एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया, सो यू इमेजिन यू स्टक विद यूपीएस एंड देन यू स्विच टू एनपीएस अगेन, यू कांट मूव बैक टू यूपीएस, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर यूपीएस अगेन। तो ये एक यहाँ पे कैच है। फर्दर इसका एम यही है कि पहले फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू स्टिक विद इट। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू यूपीएस सिस्टम। अभी आज न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है बिकॉज एक डेडलाइन दिया है मेनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोला है कि 30 सितंबर 2025 वो इधर एनपीएस यूपीएस के लिए अप्लाई करना ही है। दिस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो यहाँ पे अंडर व्हाट रूल्स हैव बीन नोटिफाइड ये भी बताया है, एंड अभी तक कितने लोगों ने अडॉप्ट किया है ये भी बताया है, दैट इज 40,000 ओनली आउट ऑफ द 23.94 lakhs जो एनपीएस में है अभी।
Now firstly you may understand क्यों यूपीएस लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि डेडलाइन था पहले जून 30th, अभी सितंबर 30th कर दिया है। इफ यू सी द अवेयरनेस दैट इज देयर, बहुत सारा अवेयरनेस ड्राइव्स भी किया है, ओके, टू टेल देम नो अबाउट इट कि इनका लॉस नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस है। सो मेनी एम्प्लॉइज जो यूनियंस हैं ये चाहते हैं कि ओपीएस इज बेटर देन यूपीएस एंड एनपीएस। ओके, इनको लगता है ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, जो ओपीएस सिस्टम था जहां पे एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये सब बेटर है देन यूपीएस और एनपीएस फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि ओपीएस के बारे में रादर देन एनपीएस और यूपीएस। सो दैट इज द होल एस्पेक्ट अबाउट। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कि एक रिसेंटली मीटिंग हेल्ड की थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और वो चाहते हैं कि जो छठ महापर्व है इसको यूनेस्को का रिकग्निशन मिले। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस यूनेस्को रिकग्निशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम देखते हैं छठ महापर्व के बारे में। तो छठ महापर्व इज डेडिकेटेड टू होम, टू द सन गॉड एंड गॉडेस छठी माया। ठीक है, so this is one of the oldest festivals of India and that is celebrated in states like Bihar, but it is also celebrated in Uttarakhand, Uttar Pradesh as well as West Bengal. And not only in India, it is also celebrated outside India in countries like Mauritius, Fiji, Suriname, UAE, Netherlands. ठीक है, तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी वहां पे है वो भी ये बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। सो जिससे क्या पता चलता है कि हम ये जो फेस्टिवल है, इट इज सिंबलाइजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी स्पिरिट, इंक्लूसिविटी, ऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट, एंड जहाँ पे सभी रिलीजन साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिवोशन बता सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ये किस लिस्ट में ऐड होना चाहती है। ओके, इंडिया वांट्स टू ऐड दिस इन विच लिस्ट, ये पहले पता करते हैं। So that is called as intangible cultural heritage. What is the list name called? Intangible cultural heritage. Now what do you understand by intangible cultural heritage? यहाँ पे it is nothing but जो practices है, something that you can't see, like monuments या statues, ये सब symbols है जो तुम देख टच कर सकते हो। Now these are mainly practices, mainly some पूजा हो सकती है, कोई रिचुअल हो सकता है, representation, experience, knowledge, skill, ये सब जो बहुत ही यूनिक है किसी कम्युनिटी के लिए, राइट, जो उनका पार्ट है उनका कल्चर का, वो होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो व्हाट डज इट इंक्लूड? ये इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल स्पेसेस भी इंक्लूड कर सकती है दैट आर एसोसिएटेड विद योर कल्चर, राइट। सो इट डज नॉट एंड एट मॉन्यूमेंट्स अलोन या ऑब्जेक्ट्स अलोन, बट इट रिफर्स टू समबडीज कल्चरल एक्सप्रेशंस। तो हम कौन से कितने इंडिया के चीजें हैं जो इंटेंजिबल में है, ये सब भी देखेंगे, पर याद रखना ये कहाँ कब आया। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आया था कन्वेंशन ऑफ 1972 में, तो वैसे ही यूनेस्को का 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्ड ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये कब आया था? 2003 में। सो दिस कंसिस्ट ऑफ 5 डोमेन्स। व्हिच आर दीज डोमेन्स? ओरल ट्रेडिशंस, ओके, एक्सप्रेशंस, जैसे कि लैंग्वेज, ये इंटेंजिबल हो सकता है। सेकेंड, कुछ आर्ट्स, मे बी सम डांस फॉर्म, मे बी सम सिंगिंग, ठीक है, ये, या ड्रामा, दिस इज इंक्लूडेड। तीसरा, कोई प्रैक्टिस, कोई रिचुअल, कोई फेस्टिवल। सो रिमेंबर देयर इज वन फेस्टिवल दैट इज इंक्लूडेड इन द कल्चरल हेरिटेज। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट लिस्ट एज वेल। फोर्थ वन इज नॉलेज एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, जैसे कि योगा, राइट, सो दैट इज अगेन कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को। द फिफ्थ वन इज सम ट्रेडिशनल craftsmanship. Okay, so that is the fifth one. Now we will see which are the 15 that are there. पहले जो आया था that was a Sanskrit theatre from Kerala which is Kutiyattam. This is the first one. ठीक है, 2008 में मिला था। So 2003 में कन्वेंशन आया, 2008 में हमको केरला का संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम को मिला। उसके अलावा वैदिक चैंटिंग, रामलीला, रमन, मुदियेट्टू, कलबेलिया which is from Rajasthan, Chau dance which is from 3 parts of the eastern part of India which is Odisha, Jharkhand and Bengal, Buddhist chanting of Ladakh, Sankirtana,
ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ थतेराज ऑफ पंजाब, जो लास्ट वाला था क्राफ्ट्समैनशिप, ओके, सो ये भी इंक्लूडेड हो सकता है। नवरोज विच इज मल्टीनेशनल, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा एंड गरबा, सो डांस फॉर्म्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जैसे कि गरबा इज अ डांस फॉर्म, वी कैन टॉक अबाउट छाऊ डांस इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म, कलबेलिया इज फोक सॉन्ग्स एंड डांस, राइट, सो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? Now, why do we want this Chhat Mahaparivana to be part of this? Okay, तो ये हम देखते हैं क्यों हमको छठ महापर्वा को इंक्लूड करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। इससे फर्स्टली रिकग्निशन मिलेगा, वर्ल्ड वाइड ये रिकग्निशन आएगा, हाईलाइट करेगा इंडिया का रिच कल्चर, रिच हेरिटेज, वैल्यू सिस्टम, राइट। हमारे जो दूसरे कंट्रीज जैसे मैंने कहा UAE, फिजी, इन सब कंट्रीज में भी वी विल सी दैट देयर विल बी अ कल्चरल प्राइड। तीसरा, ये सॉफ्ट पावर को शोकेस करेगा इंडिया का, टू से दैट इंडिया इज लीडिंग विद रिगार्ड टू देयर कल्चर, टेकिंग दैट एज अ डोमिनेंट पोजीशन। फर्दर, इंडियाज लीडरशिप इन अगेन प्रमोटिंग शेयर्ड हेरिटेज, एंड ये डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजर्वेशन ऑफ आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी इसका लाभ उठा सकें। सो करंटली एज आई सेड देयर आर ओनली 15 such heritage that are prescribed in the UNESCO intangible heritage, और अगर छठ महापर्वा इंक्लूड होता है, that will be included for 26-27 cycle. So this is all with regard to the Chhat Mahaparva. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू सारनाथ ऑन यूनेस्को रेडार। सो हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया है सारनाथ को इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो करंटली वी ऑल नो दैट देयर आर 44 कल्चरल द साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, और हमने नॉमिनेट भी किया था लास्ट मंथ इनफैक्ट फॉर सारनाथ सिस्टम, सारनाथ टेम्पल एज वेल। तो इसीलिए अभी यूनेस्को का एक टीम आया है विजिट करने सारनाथ, एंड so you know all this ki why should it get, so they are going to prepare a report and then finally फिर आएगा include होगा फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। now यहाँ पे एक और पॉइंट लिया है कि ASI which is the Archaeological Survey of India, इन्होंने प्रिपेयर किया टू install a corrected plaque. Okay, these are the plaques that you can see, and ये local role बताने के लिए। Now what are these plaques? अगर आप कोई monuments visit करते हैं तो आपने देखा होगा there is like a written format में कि किसका contribution था, ये किसके बारे में, उसके rich culture के बारे में, all that is mentioned in this plaque. इसको plaque बोलते हैं। तो अभी ASI क्या करना चाहती है कि इसको correct करना चाहती है, because there was some incorrect information in the plaque. What was the इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन था कि ब्रिटिश ने बहुत अच्छा काम किया है इस जो सारनाथ, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, इसको देखरेख करने में ब्रिटिश का हाथ है, ऐसे प्लाक में लिखा था। बट एक्चुअल में इसको क्रेडिट देना चाहिए किसको? बाबू जगत सिंह फैमिली, जो है अर्स्टवाइल बनारस रूलर्स, वो बनारस के रूलर्स हैं, तो उन्होंने प्रेजर्वेशन किया, उनका नाम लिखना चाहिए था, पर लिखा किसका गया है? ब्रिटिश का। सो दैट इज व्हाई दे ASI वांट्स टू change. So now quickly let us see about सारनाथ। इसको what is so unique about सारनाथ, क्यों इनको मिलना चाहिए यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग, ये सब देखते हैं। So if you talk about the Sarnath, this is located where? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। Now this is known for pilgrimage of the बुद्धिज्म, ओके, पिलग्रिमेज साइट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट, जहां पे गौतम बुद्धा जो है इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं देयर आर 4 साइट्स एसोसिएटेड विद बुद्धा दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि उनका बर्थ प्लेस जो था लुम्बिनी, व्हिच इज प्रेजेंट डे नेपाल में। सो लुम्बिनी इज इंपॉर्टेंट, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। फिर आता है बोध गया। बोध गया में क्या हुआ था? ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, निर्वाणा अंडर द पीपल ट्री, अंडर द बोधि ट्री, है ना। तो ये सेकेंड साइट। थर्ड साइट है सारनाथ, जहां पे उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था। एंड द फोर्थ साइट व्हिच इज कुशीनगर। कुशीनगर इज वेयर ही डाइड, द डेथ ऑफ बुद्धा। तो ये 4 साइट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। Now
सारनाथ के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि ऋषिपताना, मृगदबा, मृगदया, ठीक है। एंड द मॉडर्न नेम जो सारनाथ है ये डिराइव किया था बाय द सरंगनाथा व्हिच इज द लॉर्ड ऑफ द डियर। इसको हम डियर पार्क भी बोलते हैं, ओके, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज द डियर पार्क। नाउ ये एक्सकवेट किसने किया था? अभी जो प्रेजेंट डे एक्सकवेशंस अगर हम बात करें उनका यहाँ पे श्रेय जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कैन यू टेल मी व्हेन वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एंड इसका हेडक्वार्टर्स? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। द ASI का जो फॉर्मेशन ईयर एंड उसका हेडक्वार्टर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन और सब किया। एंड सारनाथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अगर हम बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स देखें जो 3rd सेंचुरी BC के हैं अप टू 11th सेंचुरी। वी ऑल्सो सी अशोकन पिलर दैट इज ऑल्सो नाउ इंडियाज नेशनल एम्ब्लम, जो लायंस देखते हैं, राइट, द 4 लायंस, यस। एंड इट इज कनेक्टेड ऑल्सो टू जैनिज्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज्म के लिए, जैनिज्म का भी यहाँ पे कनेक्शन है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू सारनाथ। लेट अस नाउ क्विकली ऑल्सो सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां पे इसका नॉमिनेशन किया गया है। ये एक कन्वेंशन आया था 1972 में। सो दे हैव कॉन्फ्रेंसेस एवरी ईयर। तो 47th जो कॉन्फ्रेंस था ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस हैपेंड इन पेरिस। इनफैक्ट इसके पहले जो 46th वाला था वो इंडिया में हुआ, ठीक है। तो 47th यानी कि 2025 इस साल में कहां पे हुआ? पेरिस में हुआ। सो व्हाट डज इट डू? ये हमारा जो कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंट साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो देयर आर 3 साइट्स दैट इट रिकॉग्नाइज। वन इज कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। सो जो कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड। इंडिया में अभी सिर्फ एक मिक्स साइट है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ओनली मिक्स साइट ऑफ इंडिया? कल्चरल कितने हैं? कल्चरल में 36 हैं, नेचुरल में 7 है। सो 36, 7 एंड 1। सो टोटल ऑफ हाउ मेनी साइट्स? एज आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी 44। लेटेस्ट साइट कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। पहला साइट, फर्स्ट एवर साइट्स is Agra Fort, Taj Mahal, Ajanta Caves and Ellora Caves. Now यहाँ पे याद रखना इंडिया ने ratify किया था 1977 में, right? And we joined 195 other countries in this commitment. हम also देखते हैं कि under this convention जो 1972 का convention है, इसमें हर पार्टी nominate कर सकती है only one site पर ईयर। तो हमने अगले साल के लिए 26-27 के लिए किस साइट को दिया है? सारनाथ। 25-26, यस, ओके, फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कितना अभी हमारा रैंक है? इंडिया रैंक 6 ग्लोबली विद रिगार्ड टू यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड करंटली द टॉप कंट्री इज Italy, second in Asia Pacific after China, okay, and 62 हमने tentative list में डाला है कि ये होने चाहिए, right, पर अभी है 44, which is the nodal agency that connects with the heritage matters in India, that is the Archaeological Survey of India. So ये है ASI के B. So this is all with regard to the heritage. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है गुजरात ने ट्रेन किया है 1.81 लाख आर्टिसंस 2 सालों में अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। इसके लिए हमको पता करना है व्हाट इज PM विश्वकर्मा स्कीम, बिकॉज ये लॉन्च किया था 17th of September, ओके, 2023 में। सो 2 साल हुए हैं। तो यहाँ पे गुजरात कहता है कि 1.81 आर्टिसंस को इसने ट्रेन किया है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्कीम ऑल अबाउट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरा फंडिंग सेंटर देता है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके। नाउ एलिजिबिलिटी देखते हैं इसमें क्या है। वी हैव ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन दैट इज अबाउ 18 years of age, okay, 18 years of age above
engaged in 18 identified trades, अलग अलग ट्रेड्स हैं। तो अगर आप 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, यू आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। तो इस स्कीम में आपको क्या किया जाएगा, आपको स्किल्स दिए जाएंगे, they will uplift your skills, they will try to integrate these artisans and craftsmen in the formal economy। इसके लिए 13,000 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग दिया जाएगा फॉर अबाउट 5 years, ओके, 2023 से लेके 2028 तक ये स्कीम है। ऑलराइट, सो दीज आर द 5 years, 13,000 करोड़ का फंडिंग है। नाउ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे ये भी एक बार देखते हैं। इसमें आपको लोन्स दिया जाएगा, ठीक है, सो यू कैन गेट अप टू 1 लाख लोन, एंड यहाँ पे जो 1 लाख लोन है, यू विल बी गिवन लाइक अबाउट से 12 months टू रीपे बैक, ठीक है। अगर मान लो आपने 18 months हो सकता है यहाँ पे, या बट अगर आपने एक साल में ये लोन, 18 months में ये लोन पे कर दिया, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर 2 लाख लोन। सो उसके लिए देन फर्दर यू गॉट अबाउट 30 months, फिर 30 मंथ मिलेंगे, वापस से आप उसको चुका सकते हो। सो दीज आर कोलैटरल फ्री लोन्स, मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा पहले, ट्रांच वाइज। सो यू कैन गेट 1 लाख, देन आफ्टर यू पे बैक यू कैन गेट द अदर 2 lakhs, ओके। फिर आपका कंसेशनल रेट में भी अगर आपको इससे ज्यादा भी चाहिए तो 5% इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लग सकता है। सो दैट इज कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं स्किल अपग्रेडेशन, 5-day बेसिक ट्रेनिंग होता है, ओके, और यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाता है 15 or more days ऑफ एडवांस ट्रेनिंग विथ 500 रुपीज पर डे। आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके 15,000 भी दिया जाएगा। सो यू सी दैट गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर अपस्किलिंग, फॉर ट्रेनिंग ऑफ दी स्किल्ड आर्टिसंस, ओके, स्किल देना उनको, ताकि वी आर celebrating the rich art and culture of the country. Now before I move on to understanding or teaching you about the next article, I would also like to make a quick announcement. I see that कुछ बच्चे ने comment भी किया था कि कि suggestion दिया था कि मैम प्लीज आप ensure करें कि एक GK marathon करें। So to say that yes, we are going to come up with a GK marathon very soon for you, and that is this week on the 21st of September, okay। So if at all you would be interested in watching, and I'm assuming you would be, because यहाँ पे हम बहुत सारे important news articles cover करेंगे January से लेके इस महीने तक। So if you have missed any of the important pointers, important news, this is your chance for you to revise, get back on your preparation। जिसको लगता है कि GK impossible है, well let me tell you, it is not impossible। यहाँ पे बस आपको मेहनत करनी है। These are topics that we've already touched upon, but sometimes you've forgotten about this, so this will help you with regard to a quick revision। याद रखना कि ये 5 से लेके 10 बजे तक, so it's going to be a long session। I understand it may be Sunday for you and आपको relax करना है, but you know कि आपका जो exam आ रहा है, we've got very less time, so ensure that you attend this session, you make the best out of it, because अगर हम आपके लिए ये इतना कर सकते हैं, आप भी आपके life के लिए, future life के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, right? So that is coming up for you very soon this Sunday, so stay tuned। Let's now continue with the next article। अगला आर्टिकल है, हमने किया था कुछ दिन पहले विद रिगार्ड टू द इंडिया यूएस एक्सरसाइज। अभी इंडिया यूएस एक्सरसाइज का नाम क्या है याद रखना है आपको, इट इज युद्ध अभ्यास, ओके। और ये कहां पे होस्ट किया गया था, दिस वाज होस्टेड इन अलास्का। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है इंडिया की तरफ से। विच वॉज द रेजिमेंट दैट पार्टिसिपेटेड, इट वॉज द मद्रास रेजिमेंट। Is that clear? तो ये आपको पता होना चाहिए। So despite all the trade disputes and negotiations that are happening, this is some on the exercise news on the defense front that both countries are doing. Next article is also with regard to an exercise जहाँ पे Russia and Belarus, again we have discussed this in my previous in the previous week, जहाँ पे Russia and Belarus are going to have their drills, military exercise, जिसको बोलते हैं Zapad, okay। Zapad is a code name, it also means west। So Belarus के जो neighbors हैं, they are actually inclined with US।
यूएस का जो आपने सुना होगा नेटो है. सो वी गॉट बेलारूस के नेबर्स जिनका नाम है पोलैंड, Lithuania, we have Latvia. Okay, these are the neighbors that are part of NATO. ओके, we know NATO वेस्टर्न कंट्रीज का ये मिलिट्री अलायंस है जहां पे इनका एक सेक्शन है कि तुम हमारे दोस्त को मारोगे तो हम तुमको मारेंगे. दैट इज नेटो, जो बना था 1949 में. हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स बेल्जियम में. एंड ये भी काफी न्यूज में है. 32 मेंबर्स का ये बॉडी है. बट इनका खुद का नेबर जो बेलारूस है, ये this is having good relations with Russia. We know both of these countries are also part of SCO, Belarus being the latest country of the SCO. So यहाँ पे ये exercise कर रहे हैं Zapad, ये rehearse कर रहे हैं the launch of nuclear arms. ठीक है, so that is why this is very very important. Apart from Russia, Poland, Lithuania and Latvia, we also have Ukraine as the neighbor of Belarus. But याद रखना, Ukraine is not a member of NATO. It is associated but not a member. तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा है with regard to the recent exercises that are there, recent important news, and that is all with regard to our today's discussion. बहुत ही interesting discussion था with regard to a lot of international and national news. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.